today inverse hyperbolic function. Now what is, we have studied hyperbolic function, now we are going to study inverse hyperbolic function. So if sine hyperbolic y is equals to, let us say, x, then y is called the inverse hyperbolic function, and it is denoted by y is equals to sine hyperbolic inverse x. Okay, so there are three definitions: sine, cos and tan hyperbolic inverse. Sine hyperbolic z, where z is real, z यहाँ पे real है आपका. So sine hyperbolic inverse z is equals to log z plus square root of z square plus 1. Cos hyperbolic inverse is defined by log z plus square root of z square minus 1. तो sine hyperbolic inverse में आएगा प्लस और cos hyperbolic inverse में आएगा माइनस. ओके, tan hyperbolic inverse is defined by 1/2 log 1 mod of log 1/2 log mod of 1 plus z upon 1 minus z. Okay, so let us prove one of the following. तो ये प्रूव कर रहा है sin hyperbolic inverse z is equals to log of this, ये प्रूव कर रहा है. So let sin hyperbolic inverse z is equals to x. So z is equals to sin hyperbolic x. Okay, so this equals to e raised to f minus e raised to minus x by 2. Okay, so this implies z is equals to e raised to, this can be written as e raised to 2x minus 1 upon 2 e raised to x. e raised to minus x से अगर मैं डिवाइड करूंगा, so I am getting this e raised to 2x minus 1 upon 2 e raised to x. So this implies 2 e raised to x z cross multiplied. So 2 e raised to x into z is equals to e raised to 2x minus 1. So this becomes a quadratic equation in e raised to x. e raised to x में ये quadratic equation आपका बनेगा, right? So e raised to x is equals to, आप इसके रूट्स निकालोगे तो ये रूट आपका निकलेगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So e raised to x is equals to 2z plus square root of 4z square plus 4 upon 2. Okay, so this implies e raised to x is equals to z plus 2 कॉमन निकल जाएगा, that will be cancel out. So z plus or minus square root of z square plus 1. So this implies x is equals to log of z plus or minus square root of z square plus 1. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि log कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, because if I am taking z minus square root of z square plus 1, then that is less than 0. ये क्या होगा, because z is real, आपका z कैसा दिया है, रियल दिया है, बट यहाँ पे क्या होगा, z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, और log ऑफ नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं हो सकता, राइट? सो कौन सा आएगा, सिंपली पॉजिटिव वाला आएगा. सो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1. सो इसी तरीके से हम cos हाइपरबोलिक इनवर्स और tan हाइपरबोलिक इनवर्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ये डेफिनेशन आपको याद रखने हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन द एग्जांपल्स. ओके, sin हाइपरबोलिक इनवर्स, cos हाइपरबोलिक इनवर्स एंड tan हाइपरबोलिक इनवर्स. ओके, so now look at this example. Prove that tan inverse I x minus a upon x plus a is equals to the given right hand side. Okay, so let tan inverse I into x minus a upon x plus a is equals to theta. इसको theta suppose करते हैं. So I is into x minus a upon x plus a is equals to tan theta. So x minus a upon x plus a, that equals to 1 upon I कितना होगा, that is minus I. So minus I tan theta. Okay, so this equals to minus I tan theta is sin theta upon cos theta. अब क्या करना है, component and dividend rule अप्लाई करता है. तो if you are applying C&D rule, so what you are getting, that is 2x upon 2a. So x by a, right hand side आपका होगा e raised to minus I theta है, नीचे है e raised to I theta, so it is e raised to minus 2I theta. Okay, so this implies a by x is equals to, ये plus हो जाएगा e raised to 2I theta. So 2I theta is equals to log of a by x. So theta is equals to 1 upon 2I log a by x. So this equals to, but 1 upon I is minus I. So minus I by 2 log of a by x. अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड जो मुझे प्रूव करना था वो हो गया. क्यों? मैंने थीटा क्या सपोज किया था, tan इनवर्स ऑफ I x माइनस a अपॉन x प्लस a. ओके, सो tan inverse of this is equals to minus I by 2 log of a by x. Hence it is proved. तो ये प्रूव हो गया. तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे C&D रूल अप्लाई करके ये पूरा एग्जांपल आपको करना है, राइट?
Now prove that tan inverse z is equals to I by 2 log of I plus z upon I minus z. Okay. So let us take tan inverse z is equals to u. So z is equals to tan u. So this implies z is equals to, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो राइट हैंड साइड पे i मुझे मिलना चाहिए. ओके, तो tan u को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आई टेन हाइपरबोलिक आई यू. अब माइनस आई टेन हाइपरबोलिक आई यू, अब टेन हाइपरबोलिक आई यू में क्या होगा, आई बाहर निकलेगा. सो दैट इज आई स्क्वायर इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, और टेन हाइपरबोलिक यू का क्या हो जाएगा, टेन यू. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको. सो टेन हाइपरबोलिक आई यू इज इक्वल्स टू जेड आई. ओके, वन अपॉन आई कितना होता है आपका, माइनस आई, तो वन अपॉन माइनस आई कितना होगा, प्लस आई होगा. So this implies IU is equals to tan hyperbolic inverse ZI. So IU is equals to, अब यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करो इनवर्स हाइपरबोलिक की. tan हाइपरबोलिक इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, 1/2 log 1 plus z upon 1 minus z. So 1/2 log of 1 plus iz upon 1 minus iz. अब यहाँ पे देखिए 1/2, 1 upon i कितना होगा, माइनस आई. सो u is equals to minus I by 2 into log 1 plus iz upon 1 minus iz. So but what is u? u मैंने क्या सपोज किया था, tan inverse z. So tan inverse z is equals to I by 2 into log, अब यहाँ से मैंने माइनस को बाहर निकाला है. ठीक है, ये पूरा रिवर्स हो गया. ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस को मैंने वायोलेट कर दिया है, उसको निग्लेक्ट किया है, तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा. सो log into 1 minus iz upon 1 plus iz. So this equals to I by 2 log 1 plus z अपॉन आई प्लस जेड अपॉन आई माइनस जेड. यहाँ से आई को मैं बाहर निकालूंगा. सो आई एम गेटिंग दिस. सो इसी तरीके से आपको एग्जांपल इसमें ध्यान रखना है. इसे यू हैव टू डू दिस एग्जांपल इन दिस वे. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस ऑफ योर चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो लेट जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करेंगे इसमें. जेड इज इक्वल्स टू आर ई रेज टू आई थीटा. ओके, सो what is r? That is the modulus. So mod z, it is square root of x square plus y square, and theta is the argument of z. It is defined by tan inverse y by x. अब log z क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है. सो log z होगा, log अप्लाई कीजिए. सो log of r e raised to i theta. So log r plus log e raised to i theta. So log z is equals to log r plus i theta. Okay, but what is r? It is square root of x square plus y square, right? And theta is tan inverse y by x. So this is called the principal value of log z. ये जो आपको राइट हैंड साइड पे जो मिल रहा है log of square root of x square plus y square, या log z जो है, it is nothing but principal value. The general value is given by, यहाँ पे ध्यान दें जनरल वैल्यू कैसे हम देंगे, तो यहाँ पे जो थीटा है आपका, it is replaced by theta plus 2n pi. This is the general value, okay, for any n. Okay, so this is the principal value, this is a general value. Now look at the small example here. Find the value of log I. Okay, log I, अब I that is a complex number. तो आप look at the definition है. log z क्या है, z की जगह पे I है, तो क्या होगा, log of square root of x square plus y square. तो ये कितना हो जाएगा, x भी 1 है, y भी 1 है. सो स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा आपका, सॉरी y 0, x आपका 0 है, y 1 है. So square root of 0 plus 1. So it is log 1 plus I theta, I tan inverse y by x. तो tan inverse y कितना आपका 1, x आपका है 0. तो ये log 1 is 0, और tan inverse infinity कितना होगा, pi by 2. तो log I की वैल्यू कितनी आएगी, it is I pi by 2. Okay, so हेलो सर. yes सर ये 2n पाई प्लस थीटा वाला स्टेप कैसे आया, वो फिर से एक्सप्लेन कीजिए. इट इज द जनरल वैल्यू. अब ये प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी. जनरल वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, आपका थीटा यहाँ पे फिक्स हो गया है. ओके, लेकिन इट इज द पीरियोडिक वन. तो पीरियोडिक वन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने रूट मैंने फाइंड आउट किया था, राइट. तो जनरल वैल्यू में क्या आएगा, इट इज वैलिड फॉर एनी एन. किसी की जनरल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, तो उसमें थीटा क्या रिप्लेसमेंट करोगे आप, थीटा प्लस 2n पाई. क्लियर? Done, sir. Okay. Now look at this example. Separate real and imaginary part. Log 1 plus I upon to the base 1 minus I. Okay. So this can be written as by the property of log of 1 plus I upon log of 1 minus I. अब ये भी
लॉग ऑफ जेड है, ये भी लॉग ऑफ जेड है, तो उसकी डेफिनेशन अप्लाई करो 1/2 लॉग ऑफ स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट जो था वो 1/2 मैंने आगे ले लिया, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x1 है y1 है, सो इट इज 2 प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स, सो tan इनवर्स 1। नीचे भी डेफिनेशन अप्लाई करो, हियर इट इज tan इनवर्स -1, तो 1/2 log 2 प्लस tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, सो आई पाई बाई 4, नीचे क्या आएगा माइनस आई पाई बाई 4। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय log 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ऊपर का मीन्स नीचे का कॉन्जुगेट लेना है, सो दैट इज log 2 प्लस आई पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमको, राइट। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, log 2 होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस आई पाई log 2 अपॉन दिस। ओके, नाउ क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। नाउ इट इज वेरी इजी टू सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस आई वाई है, तो रियल पार्ट कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, i के साथ में जो होगा दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। So you have so you will get x is equals to this and y is equals to this. So x is real part and y is imaginary part. Okay. Look at this example, root I raised to root I. Now whenever you are seeing like this example, अगर इस टाइप का एग्जांपल है रूट आई रेस टू रूट आई मीन्स पावर के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करना है, पहले रूट आई का हम फाइंड कर लेते हैं। लेट ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू रूट आई। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, सो लॉग ए प्लस आई बी इज 1/2 लॉग आई। अब आई को कैसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू आई पाई बाई 2। व्हाट इज ई रेस टू आई पाई बाई 2, ई रेस टू आई पाई बाई 2 क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 इज 0 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, सो इट इज 1। ओके, तो आपको आई मिलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ए प्लस आई बी, ओके यहाँ पे लॉग लिखना चाहिए था। ओके, यहाँ पे इट इज लॉग ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू ई रेस टू 1/2 आई पाई बाई 2। ओके ओके ठीक है, लॉग को मैंने राइट हैंड साइड पे ले लिया, सो इट कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो ई रेस टू 1/2 आई पाई बाई 2, सो दैट इज ई रेस टू आई पाई बाई 4। व्हाट इज ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी इट इज रूट आई, सो रूट आई की वैल्यू कितनी मिली, ई रेस टू आई पाई बाई 4। नाउ consider root I raised to root I means the original one. It is a complex number, let us say x plus I. And now take log on both the side, so root I into log root I is equals to log x plus I. अब root I की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर दी है, क्या है, e raised to I pi by, so just replace the value of root I here, so e raised to I pi by 4 log e raised to I pi by 4 is equals to log x plus I. So log x plus I is equals to e raised to I pi by 4 is cos pi by 4 plus I sin pi by 4, और ये हो जाएगा आई पाई बाई 4। अब cos पाई बाई 4 इज 1/√2, ओके, एंड sin पाई बाई 4 इट इज ऑल्सो 1/√2, ओके, into आई पाई बाई 4, राइट। सो दिस implies x plus i by is equals to e raised to 1/2 plus I upon √2 into pi by। now compare the real and imaginary। अब आप इसको सेपरेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब e रेस टू x प्लस आई वाई होगा तो e रेस टू x इंटू e रेस टू आई वाई के हिसाब से इसको सेपरेट करके एंड राइट डाउन द x एंड y। x इज रियल एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ look at this example, if I raised to up to infinity is equals to a plus ib, then prove the following। ओके, अब नीचे का प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, look at here, I raised to up to infinity, तो ये जो पोर्शन है I raised to up to infinity, वो आपको क्या दिया है, a plus ib। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ I raised to a plus ib is equals to a plus ib, yes or no? ये समझ में आया ये कैसे लिखा? Yes sir. Okay, अब take log on both the side, so log of a plus ib is equals to a plus ib into log I। log I की वैल्यू मुझे पता है, it is I pi by 2। ओके, so अब log a plus ib, use the definition 1/2 log a square plus b square plus I tan inverse y by x, y है b और x है आपका a, so b by a is equals to, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, so you will get this। now if you comparing the real and imaginary part, तो क्या होगा, 1/2 रियल पार्ट कौन सा होगा, 1/2 log a square plus b square, that will be compared to minus b pi by 2। तो आपको ये मिलेगा जो मुझे प्रूव करना है, द फर्स्ट वन। एंड इफ यू आर कंपेयरिंग द रियल पार्ट, तो रियल पार्ट में क्या होगा, tan इनवर्स b by a is equals to a pi by 2। तो आपको क्या मिलेगा वो, that is b by a is equals to tan inverse
पाई ए बाई 2। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। अब लुक एट दिस साइन इनवर्स, यहाँ पे लॉग दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि लॉग दिख रहा है तो यहाँ पे कुछ लॉग की डेफिनेशन का एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस, डोंट वरी अबाउट द जो मुझे प्रूव करना है उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जो दिया है आपको, व्हाट यू हैव टू गिवन, जो आपको दिया है उसके ऊपर से आपको सोचना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, राइट। फिर आधे एग्जाम्पल में जाने के बाद में आप सोचिए कि अब मुझे राइट हैंड साइड देखिए, अब मुझे प्रूव क्या करना है, अब उसके हिसाब से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए लॉग ऑफ ए प्लस। अब आप कितना जानते हो, तो यहाँ पे मैं सिंपली इतना जानता हूँ कि लॉग की डेफिनेशन है मेरे पास, तो पहले अप्लाई कर दो 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई ए दिस इक्वल्स टू 1/2 log e raised to 2 alpha plus I tan inverse b by a. Okay, a square plus b square, okay, it is given here a square plus b square is e raised to 2 alpha. Okay, so sin inverse x plus iy is equals to let us say alpha plus I theta. ओके ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा आ जाए आगे आ जाएगा, 2 विल बी कैंसिल आउट, सिंपली यू आर गेटिंग अल्फा हियर प्लस आई थीटा वेयर थीटा इज tan इनवर्स b बाय, दिस इज फॉर आवर कन्वीनियंस। सो x प्लस आई वाई, साइन को राइट हैंड साइड पे भेजिए, सो साइन अल्फा प्लस आई थीटा। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा हियर, सो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस आई थीटा हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आई थीटा हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। नाउ कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी, तो x आपको मिलेगा साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक एंड y मिलेगा कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक, राइट। अब यहाँ पे अब जाके देखिए कि मुझे क्या प्रूव करना है। अब मुझे प्रूव करना है, यहाँ पे अल्फा अल्फा दिख रहा है तो मुझे किसको एलिमिनेट करना है, हाइपरबोलिक नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब कॉस हाइपरबोलिक यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी, इट इज x अपॉन साइन अल्फा, सो x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू मिल जाएगी आपको y अपॉन कॉस अल्फा, सो y स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इक्वल्स टू 1। ओके, तो मुझे जो प्रूव करना था तो वो प्रूव हो गया, ठीक है। हेलो सर। यस सर वो सेकंड स्टेप फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा सेकंड स्टेप? आई टेन इनवर्स बी बाय ए वाला, वो फर्स्ट से सेकंड स्टेप कैसे हाँ। आया? हाँ, वो तो कहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं किया है ना मैंने, आई टेन इनवर्स बी बाय तो वही लिखा है ना, आई टेन इनवर्स बी बाय तो लॉग सर हाँ, वहां से फर्स्ट स्टेप है ना लॉग ऑफ ए प्लस आई बी, वहां से सेकंड स्टेप में आई इंटू टेन इनवर्स ऑफ बी ए कैसे आया? डेफिनेशन, लॉग की डेफिनेशन अप्लाई की ना। लॉग की डेफिनेशन क्या है देखो, लॉग की डेफिनेशन 1/2 मैं आगे ले लेता हूँ, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे आपका y कितना होगा, आपको क्या दिया है यहाँ पे a प्लस आई बी है, ठीक है। तो y कितना होगा b और x कितना है a है, तो कितना होगा आई टेन इनवर्स y बाई एक्स मीन्स b बाई a। ओके, यस सर, डन। ये डेफिनेशन अप्लाई किया है। log x प्लस आई वाई की डेफिनेशन देखो, ये देखो log z, व्हाट इज z, इट इज x प्लस आई वाई। तो log z की डेफिनेशन देखो, log x प्लस आई वाई इट इज डिफाइंड बाय 1/2, ये स्क्वायर रूट का आगे ले लेता हूँ, सो 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y बाई x। ओके डन सर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the, so hence your syllabus is over here. If you have any doubt then you can ask me, अगर कोई डाउट है सर असाइनमेंट के क्वेश्चन में डाउट है, असाइनमेंट 8 में। असाइनमेंट 8 में, ओके जस्ट अ मिनट, कौन सा एग्जांपल है असाइनमेंट में? असाइनमेंट 8 ना, जस्ट अ मिनट, देख रहा था असाइनमेंट 8 ना। असाइनमेंट 8। यस सर। असाइनमेंट 8, ओके।
ओके, हाँ बोलो क्या डाउट है उसमें, कौन सर सा उसमें एन फिफ्थ क्वेश्चन में सीरीज का एन नहीं बन रहा है। एन आपका क्या आएगा, 1 2 3, सो इट इज एन प्लस, ओके दिस इज अ सीक्वेंस, आपकी सीक्वेंस कैसे बनेगी, n+1 n+2 एंड सो ऑन, तो 1 2 3 है, तो ये कितना आएगा आपका, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 2 1 2 तो 3, डॉट 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 हो जाएगा ना, डॉट 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 रहेगा। नीचे आपका आएगा 3 5 7, सो 3 5 7 अप टू दैट इज 2n+1, वो तो हो जाएगा आपका 2n+1 हो जाएगा, 1 2 3 n इंटू n+1, तो वो अप टू n आएगा आई थिंक, जस्ट अ मिनट देख लेता हूँ मैं एक बार, नीचे तो हो जाता है, नीचे 3 5 7 अप टू 2n+1, सर 1 2 3 डॉट 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 एन न्यूमरेटर में वो हो गया और डिनोमिनेटर में डॉट 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 का 2n+1 हो गया, तो फिर हाँ आगे उसको इवेल्युएट कैसे करें? हाँ, तो उसमें आपकी रेशियो टेस्ट अप्लाई करो ना, रेशियो टेस्ट अप्लाई करो, अच्छा, तो वो सर कुछ कटेगा ना, वो +1 होता है होएगा तो कट जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, तो वो कैंसिल आउट होगा आपका, वो वहां से आपको रेशियो टेस्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो वहां पे क्या होगा, 1 2 3 अप टू n, और नीचे वो n+1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2n+1, सो 2n, n की जगह पे 2n+1, सो इट इज 2n+3, वहां पे n में तो n वाला पूरा सीक्वेंस आपका कट हो जाएगा और यहाँ से आपका कितना होगा, 2n+3 है, तो उसका आगे आएगा 2n+2 और 2n+1 एंड देन 2n, तो 2n अप टू 2n वाला कट हो जाएगा, तो नीचे के ऊपर आएगा आपका n+1 और नीचे आएगा आपका 2n+1 2n+2 एंड 2n+3, तीन आएंगे, और फिर लिमिट फॉर्म टेस्ट से 1 ऊपर कितना आपका n बार निकलेगा, नीचे से n³ बार निकलेगा, सो 1/n² होगा, अब 1/n² bn सिलेक्ट कर लो, 1/n², सो लिमिट फॉर्म टेस्ट से ये आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, 1/n² विल बी कैंसल आउट, आर यू गेटिंग इट? ओके सर, गेटिंग। ओके, बोलो आप कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, थोड़ा डाउट, अब तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सर रेंज ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन होते हैं सर, उसको सोल्व कैसे करना है? रेंज पहले ऑफ कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस, के मैंने रेंज ऑफ कन्वर्जेंस आपको बताया था, रेंज ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि आपकी एक्स की बाउंड्री डिसाइड करनी है, लिमिट डिसाइड करनी है, जैसे हम करते हैं ना कि जैसे रेशियो टेस्ट अप्लाई किया और वहां पे आपको मिल गया, सपोज कि आपको ऐसा मिल गया, एक्स मिल गया लास्ट में, ठीक है, रेशियो टेस्ट में अप्लाई करो, लास्ट में एक्स मिल गया, तो रेंज कितना होगा कि इफ एक्स इज लेस देन 1 देन कन्वर्जन, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट एंड इक्वल टू 1 टेस्ट इज फेल, तो ये आपकी रेंज हुई कि भाई यहाँ पे लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। सर एक्स इक्वल टू 1 डाल के चेक तो नहीं करना है ना फिर, क्या फिर वो कहाँ पे कन्वर्जेंट हो रहा है? हाँ ना, वो भी करना पड़ेगा ना, क्यों, वो भी करना पड़ेगा, और ये चीज सिर्फ रेंज ऑफ कन्वर्जेंस में ही करनी है ना, एक्स इक्वल टू 1 डाल के? ना ऐसा सोचो कि आपको सब में ऐसा ही करना है, डोंट फॉरगेट अबाउट रेंज ऑफ कन्वर्जेंस, एग्जांपल पूरा ही कर दो, x=1 के लिए भी चेक कर दो, ओके सर। ओके। अगर क्वेश्चन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस लिखा हो तो भी यही चीज करनी है? हाँ हाँ, इसी तरह हमने जिस तरीके से किया उसी तरीके से करना है, बट आई बिलीव कि रेंज ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि सिंपली आपको इतना ही लिखना है कि x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है डाइवर्जेंट है, और x=1 के लिए चेक करना, तो मीनिंग तो वही हुआ ना, हम क्या कर रहे हैं आफ्टर ऑल, कन्वर्जेंस ही चेक कर रहे हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ओके सर। ठीक है, बोलो दूसरा कोई डाउट पूछ लो आज मुझे सब लोग। सर आप इनफाइनाइट सीरीज वाली पीपीटी शेयर कर सकते हैं? इनफाइनाइट नहीं, वो तो हमने ऑनलाइन वर्क करके किया था ना, वो तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसकी होगी नहीं मेरे पास पीडीएफ। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। अगर मैं देख लूंगा, अगर वो वन नोट के अंदर सेव है तो फिर आपको सेंड कर दूंगा, अगर है तो मैं सेंड कर दूंगा। सर यस, सर वो लास्ट के प्रीवियस 2 3 4 टॉपिक है, उसका एक असाइनमेंट बना के शेयर कर दोगे? असाइनमेंट तो आपको भेजते ही है ना, असाइनमेंट तो
उसमें सब तो आ कॉम्प्लेक्स जाएगा। नंबर का असाइनमेंट 10 तो है ना, वो कुछ टॉपिक्स के लिए है, तो हाँ हाँ, आप 2-3। मैं आज भेजूंगा, आज मैं भेजने वाला हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अब उसमें एक एक्चुअली कैसा है, असाइनमेंट 11 है ना, उसके अंदर ई ऑफ जेड करके लिखा है, ई ऑफ जेड करके लिखा है, सो फॉरगेट अबाउट दोस एग्जांपल। ई ऑफ जेड करके जो लिखा है ना, वो आपको समझ में फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 एग्जांपल है ना, उसमें ई ऑफ जेड ऐसा लिखा है। ओके, तो वो एग्जांपल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना है तो फिर बाद में आप करना, अगर समझना है तो फिर मैं आपको करवा दूंगा वो, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। बोलो, अभी कोई डाउट दूसरा कोई? सर, यस ये इनवर्स हाइपरबोलिक की एक बार स्लाइड ओपन करना सर। यस, क्वेश्चन। हाँ बोलो। प्लीज सर, जस्ट स्क्रीनशॉट लेना था, थैंक यू। तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये पीडीएफ आज। बोले अब कोई एनी डाउट इन एनी टॉपिक इन एनी एग्जांपल? असाइनमेंट में भी कुछ समझ में ना आया हो, असाइनमेंट में कोई एग्जांपल है कि जिसमें कोई डाउट है, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। यस, बोलिए, किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर। नो सर। ये आगे कुछ इनफाइनाइट, आपको सिलेबस तो पता है, इनफाइनाइट सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मैथ्स का तो वाइवा नहीं होगा ना, मतलब? तो मैथ्स में कहाँ पे वाइवा? हम जो अभी कर रहे हैं वो वाइवा ही है। ओके सर। जो मैथ्स में जो हम डिस्कस करते हैं अभी, वही वाइवा है आपका। इनफाइनाइट सीरीज में कोई एग्जांपल हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ हो तो बताइए, तो अभी टाइम है हमारे पास, तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर, वो मैंने जो डाउट पूछा ना, वो असाइनमेंट में से मैं हाँ। खुद ट्राई करके करूंगा, और नहीं समझ आए तो थोड़ा हाँ, हाँ। तो आप व्हाट्सएप में प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो उसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। ओके। चलिए, अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज है कोई किसी को डाउट? अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। इसके बाद में लेक्चर है किसी का, या फिर किसी का नहीं है लेक्चर? नहीं है सर लेक्चर लास्ट। नहीं सर, ब्रेक है लंच। लंच ब्रेक। ओके, तो किसी को डाउट नहीं है ना? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज सेंड मी, सो वी विल सॉल्व इट। ओके, सो